Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear all students. This is me Asif Idris, your economics tutor. Hope you're all good and your families as well. So stay at your home and safe from the COVID-19. Now in this lecture we are going to start the third chapter, which is theory of consumers' behavior. As we have discussed in the definitions of Lionel Robben in the book of Nature and Significance of Economic Science in 1932. He has said that the economics is the science which studies the human behavior as a relationship between the multiple ends and scarcity means which have alternative uses. Yeah, in simple wording में economics is a science of choice and scarcity. So today we are going to start a very important chapter that is directly connected to the economics concept, which is the consumer behavior. So we have a basic sketch of an economy in this chapter in the start. That any economy or every economy is based on two things, that consumption and production, as we have discussed in the last some lectures. So कोई भी इकोनॉमी है वो दो विंग्स पे जो है वो डिपेंडेंट होती है, एक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. इन दोनों का अल्टीमेटिव, जो दोनों विंग्स हैं, इनका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम मीन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विद इन द गिवन कंडीशन, एज वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम. सो कोई भी इकोनॉमी, कोई भी प्रोड्यूसर है उसमें, या कोई भी कंज्यूमर है, अल्टीमेटली वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलता है. If I'm talking about the whole economy in this only one word, and that is optimization, as we have discussed. इन दोनों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन सेक्टर का भी एंड कंजम्पशन सेक्टर का भी, वो अल्टीमेटली जो है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. इक्विलिब्रियम विच इज ऑप्टिमाइजेशन, द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विद इन द गिवन कंडीशन. सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्केच of economy, that is as you have seen in this slide, which is production and consumption. If we take consumption, then consumers इसमें होते हैं कुछ. consumer की definition मैं आपको बताता चलूँ कि the person who use that good and capital to meet the human want, that is the consumer. एंड दूसरी साइड पे अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे प्रोड्यूसर होगा. प्रोड्यूसर वो जो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है टू मीट द इकोनॉमिक वांट, दैट इज़ प्रोड्यूसर. सो कंजम्पशन में कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर कोई डिमांड करेगा, सपोज कोई भी डिमांड हो सकती है उसकी, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा, या मैं कहूँ कि बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विद इन द गिवन कंडीशन. और इसी तरह अगर प्रोड्यूसर की बात करूँ तो वो कुछ सप्लाई करेगा, जो भी प्रोड्यूस करेगा वो चीज़ वो सप्लाई करेगा. अल्टीमेटली सप्लाई में वो क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर कोई भी है, वो अगर प्रॉफिट गेन कर रहा है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएगा, या वो इन अनफॉर्चुनेटली फॉर द सम टाइम ड्यू टू सम रीजंस वो अगर लॉस में जा रहा है तो वो मिनिमम लॉस जो है उसकी कंसंट्रेशन में होगा. सपोज वो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन विद इन द गिवन कंडीशन जो भी होगी, प्रॉफिट में होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा, लॉस में होगा तो मिनिमम लॉस. एंड अल्टीमेटली दिस इज द इक्विलिब्रियम. और ये इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन ही, दोनों विंग्स जो हैं वो आके रुकती हैं ऑप्टिमाइजेशन से. तो एज आई हैव डिस्कस होल द इकोनॉमी इन जस्ट वन वर्ड, एंड दैट इज ऑप्टिमाइजेशन. सो दिस वाज द बेसिक स्केच ऑफ इकोनॉमी. कोई भी है, the given sketch provides us the basic guideline to understand the literature of economics, etc., etc. I mean the best possible situation with the information. And next we have some concept about this chapter, and that is consumption. Consumption mean the use of goods and services to meet the economic wants. ये हमारे पास consumption आगे जे आर हिक्स ने कहा था. And the consumer वो the person who use the goods and services to meet the economic want, ये consumer हो गया. इसमें एक direct economic consumption है, एक indirect consumption है. Direct consumption, the consumption of consumer good, like good from which we get satisfaction directly. Like हम कोई क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, या कंजम्पशन ऑफ एनी गुड जो है,
लाइक हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो हमें डायरेक्ट कंजम्पशन के तौर पे हम यूज़ होते हैं। इनडायरेक्ट मीन कोई ऐसी कंजम्पशन जिसमें हम कैपिटल गुड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, द गुड्स फ्राम विच वी कैन गेट सेटिस्फेक्शन इनडायरेक्टली, फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ मशीन, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें इनडायरेक्ट कंजम्पशन में आती हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द बेसिक जो इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है विच इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स लिटरेचर, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर एज वेल सेड बाय द लॉयनल रोगन इन हिज डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. So the behavior which a consumer adopt to maximize the satisfaction with limited resources is called the consumer behavior. Limited resources की बात मैं स्टार्ट से ही करता आ रहा हूँ कि जब भी हम इकोनॉमिक्स बेसिकली द चॉइस एंड स्केर्सिटी का नाम है. चॉइसेस हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं, नीड्स हमारे पास अनलिमिटेड होती हैं, और लेकिन हमें उन तमाम नीड्स चॉइसेस को लिमिटेड रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट में रह के हमें उसको फुलफिल करना होता है. दिस इज इकोनॉमिक्स बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. So consumer equilibrium can be found or discussed under three approaches. These are the cardinal approach, the ordinal approach, and the revealed preference theory. ये तीन हमारे पास कंसेप्ट हैं किसी भी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के लिए. जैसे मैंने कहा था कि किसी ने कहा था कि योर नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड सेटिस्फैक्ट्री. लॉर्ड कैल्विन ने कहा था योर नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री इफ वी कैन नॉट मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट. तो इस बेसिकली ये थ्री जो अप्रोचेज हैं इनमें हम तमाम यूटिलिटीज़ को, तमाम जो हम इक्विलिब्रियम बेसिकली जो बिहेवियर है कंज्यूमर का उसको इन नंबर्स में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इंशाल्लाह. Thank you so much. This is all about the basic intro of this chapter. We will discuss further. Please.